My warm greetings to dignitaries. I am Mahira Khan from Chhattisgarh and I am here to... وہ سب چھوڑ کے وہ کشمیر کا مدعا لے کے شروع ہو جاتے ہیں ٹاپک سے ہٹ کر. So When China dominated Indo-Pacific, India rushed to help and support ASEAN countries. اور انڈین فارن پالیسی کی ایفیکٹونیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کو لے ڈوبے گی، یہ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں، کیونکہ یہ ان کے کنٹرول سے نکل گیا ہے. مطلب انڈیا کے پارلیمنٹ پہ بھی اٹیک ہوا. So in which no one country dominates another country. پرائم منسٹر بنے 2014 میں. So he visited پاکستان 2015 میں وہاں پہ گئے تھے. India not only preaches but also practices Vasudhaiva Kutumbakam. جی ہم آپ کو ٹرین کریں گے اور ہم آپ کو پار کریں گے سرحدوں سے، اور وہاں جا کے تو آپ جو ہے وہ شائن بن کے لڑیں گے. By helping and not holding back technologies from poor countries. قدم اٹھاتی ہے انڈیا کی طرف. انڈیا will take 2 steps. ڈپلومیٹک سرنڈر کر دیا. India's G20 presidency, we advocate for a multilateral world. ہزار تو سرنڈر کر دیا، انڈیا کے آگے جو ہے ہتھیار ڈال دیے. اینڈ جیسا جیسا انڈیا کی انٹرنیشنل اسٹیچر بڑھتے گیا، کلاؤڈ بڑھتے گیا، کیپیبلٹیز بڑھتے گئی. چین، روس، جاپان سبھی نے بھارت کو ایک دودھ کہا، بھارت کو ایک دودھ کہا. پاکستان کو کونے میں ڈھکیلنا شروع کر دیا. اس کی سگنیفیکینس انڈیا کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف بڑھیں گے. فیلز کہ جب انڈیا بیکمس اے وکٹم آف ٹیررزم the world is not paying that much attention, اور انڈیا کو اتنا سمپتھی یا سپورٹ نہیں مل رہی دنیا سے جتنا ویسٹ ڈیمانڈ کرتی ہے. when جب جب دہلا وشو ہمارا، جب جب دہلا وشو ہمارا، اور جب جب بے مقصد خون بہا، چین، روس، جاپان سبھی نے بھارت کو ایک دودھ کہا، بھارت کو ایک دودھ کہا. My warm greetings to dignitaries. I am Mahira Khan from Chhattisgarh and I am here to India's G20 presidency. We advocate for a multilateral world in which no one country dominates another country. When China dominated Indo-Pacific, India rushed to help and support ASEAN countries by helping and not holding back technologies from poor countries. I understand that we might be divided by borders, but we believe that our culture, sports, and ideas could unite us. And in this condition, the world looks at International Solar Alliance for an equitable solution to green energy transition. Our jawar, bajra, and ragi are being celebrated as superfoods in the world today. And the world looks at Ayush for a healthy lifestyle. My dear audience, when one youth from Naxal-affected area of Abujmar in Chhattisgarh, बढ़े चलो, यही निदाए वक्त है. ये कायनात, ये ज़मीं, ये कहकशा का रास्ता, इसी पे गामज़न रहो, अमन की राह पर चलो. Thank you so much. یہاں سے کچھ فتوے جاری ہوئے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر ریاست کے سربراہ یا پاکستان کی ریاست کے خلاف یا جو ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی حملے کرے گا، اس طریقے سے کرے گا، تو وہ جو ہے وہ خارج ہے اور اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی جہاد کیا کرے. تو ان فتووں کا اس کا مطلب ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو اسی لیے ہوا تھا نا کہ بھئی آخر یہ بھی تو جو کر رہے ہیں مسلمان ہی ہیں، تو وہ سوچیں گے کہ یہ تو اب فتویٰ آ گیا. اس پہ جاہلانہ قسم کی سوچ ہے، اس کا ایک ملغوبہ ہے جس کو وہ ریلیجن کہتے ہیں، جس کا کوئی اسلام سے بھی کوئی تعلق جوڑنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی. ایک خاص علاقے کے اندر ایک جو آپ کی سوشو اکنامک کلچرل سیٹنگ ہوتی ہے، وہ کوئی سارا ریلیجن نہیں ہوتا. جس طرح افغانستان پہ طالبان نے قبضہ کر دیا تھا اور جس طرح کا طالبانزم انہوں نے نافذ کیا تھا اسلام کے نام پہ، ظاہر ہے اس کو کسی نے اسلام نہیں مانا تھا. وہ آپ کی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دشمنی ہے کیا؟ جو سینس آف انسیکیورٹی آپ لوگوں کے اندر ہے پاکستان کے حکمران طبقات اور رولنگ ایلیٹ میں، وہ تو پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گیا. چونکہ پاکستان اپنے تاریخ کے مختلف ادوار میں ایسے
क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचा के वो जिसको कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्के की जरूरत होती है, तो ऐसे क्रिटिकल स्टेज पे आपको किसी ने धक्का नहीं दिया। 71 में जब बांग्लादेश अलग हो गया था तो इंडिया को सिर्फ 10 से 12 दिन चाहिए होते वेस्ट पाकिस्तान को डिसमेंटल करने के लिए। उन्होंने कहा ये हम नहीं करते। आपका जो सेंस ऑफ जो है इनसिक्योरिटी वो जो फेक है, किसी ने आपको कोई निगलना नहीं है, ना आपका निगला जाना किसी के मफाद में है। मुल्कों, कामों और स्टेट्स की अपनी पॉलिसीज होती हैं। आप जब तक उस खौफ के आसार से नहीं निकलते, अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप करते और पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट के बजाय एक बाइज्जत किस्म की मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट के तौर पे बनाने की कोशिश नहीं करते, उस वक्त तक आप इस दलदल से निकल ही नहीं सकते। ये मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ, चूंकि आपने अपने रास्ते खुद बंद किए हुए। बुनियादी तौर पे ये वो ज़माना है जिसको हम जो है वो ग्लोबल विलेज कहते हैं। ग्लोबल विलेज में ये बात दुरुस्त है कि हर आदमी का अपना घर होता है, आपका भी अपना घर है, लेकिन ग्लोबल विलेज का जो घर होता है उसकी जो है वो बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड में बैठ के तो आप दूसरे पे पत्थर नहीं फेंक सकते, क्योंकि आप एक ग्लोबल विलेज में रह रहे होते हैं और उसके पैरामीटर्स और उसके जो हदूद और क़ुयूद हैं, जो ज़ाब्ते हैं, वो पर सबके लिए मुश्तरका हो जाते हैं। आपको अमन की तरफ बढ़ना पड़ता है। और ये इस तरह की जब तक आप ये ड्रास्टिक चेंज नहीं लाएंगे कि फेल्ड जो है इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी के साथ कितना करीबी ताल्लुक था। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप दूसरों के घर जलाने की मनसूबाबंदी रखते हों, जैसा कि हैरी क्लिंटन ने कहा था एक दफ़ा कि आप अपनी बेसमेंट में, या गालिबन उसने बैकयार्ड कहा था, अगर सांप पालते हों और ये तवक्को रखते हों कि सांप जो है वो सिर्फ पड़ोसियों को डसेंगे, तो ये इससे ज़्यादा परफेक्ट किस्म की एग्जाम्पल जो है ना वो दुनिया का कोई दानश्वर नहीं दे सकता। ये एग्जैक्टली जो है बिल्कुल हस्बे हाल किस्म की एक एग्जाम्पल है कि आपने जो है वो इस तरह का स्नेक पिट क्रिएट किए, सिर्फ बैकयार्ड में नहीं पाले, आपने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पिट क्रिएट किए और उनमें अब भी जो है फल फूल रहे। जैसा कि मैंने कश्मीर के हवाले से कहा था कि आपने बाजार तो सरेंडर कर दिया, इंडिया के आगे जो है हथियार डाल दिए, डिप्लोमेटिक सरेंडर कर दिया, लेकिन आज भी जो है वो बाज़ जगहों पे वो बैठे हुए वही राग अलाप रहे हैं जो मिलिटेंट हैं या जो अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, और आज भी वो यूथ को जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं कि जी हम आपको ट्रेन करेंगे और हम आपको ये पार करेंगे सरहदों से और वहाँ जाके तो आप जो है वो शाइन बन के लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं जिनका ताल्लुक पॉलिसी के साथ है, पॉलिसी के ज़्यादा मुनासिब अल्फाज में फेलियर के साथ है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान अब क्रॉस रोड पे आ गया है और ये जो इस मामले में इनकी खामोशी है और अपने माजी की हरकत और सकनात पे इंसिस्टेंस है, ये इनको ले डूबेगी। ये मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ, क्योंकि ये इनके कंट्रोल से निकल गया है। क्योंकि आपके पास एजेंडा नहीं है। आपके पास एजेंडा हो अगर इस वक्त जो है वो सऊदी अरबिया या यूएई या इस तरह के मुल्कों के साथ, तो आपकी तो बहुत बड़ी ज़रूरियात इस वक्त जो है उनके साथ मुंसलिक हैं, लेकिन एजेंडा नहीं है, चूँकि एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस आ गया है। तो उसको आप जब तक जो है ना वो किसी तरीके से रिकंसाइल नहीं करते, उस वक्त तक कोई वहाँ नहीं आएगा। ये मैं आपको बता दूं। आप ये देखें, सारी जो इंटरनेशनल डिग्निटरीज हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेके बरतानिया तक जा रहे हैं, साउथ एशियन विजिट हो रही हैं, पूरा एक सिलसिला है। इंडिया के साथ जो है कम्युनिकेशन का एक हार्ट लाइन खुली हुई है। तो पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन अपने ही बनाए हुए एक टनल में जो है वो घुसता चला जा रहा है, ऊपर से उसको जस्टिफाई करता चला जा रहा है। तो माने ऑथर और कॉलमनिस्ट चेतन भगत ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि क्या ये सही समय है कि भारत को पाकिस्तान को अपनी मदरलैंड इंडिया के साथ रीयूनिफाइड हो जाना चाहिए। तो इंडिया पाकिस्तान में आजकल बढ़ गई है और पार्टली बिकॉज ऑफ आई थिंक 26/11 के बाद से ये बढ़ गई है हेट्रेड की वजह से। तो मुझे लगता है कि दिस वाज
पॉसिबल फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के एक इकोनॉमिक यूनियन बना लेते तो सो एक काइंड ऑफ रीजनल रीयूनिफिकेशन की पॉसिबिलिटी सीरियसली हम लोग सोच सकते थे। G20 की जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की समिट हुई उसमें ये बात बार बार की गई जो कि क्लाइमेट के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उससे जो मुल्क सफ़र होते हैं उनको हेल्प करने की कोशिश करें। देखिए ये क्लाइमेट का मुद्दा इतना बड़ा होते जा रहा है बस कि इट इज़ गोइंग टू मेक बॉर्डर्स मीनिंगलेस। ये जो बॉर्डर्स है वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएंगे। पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट भी बहुत रैपिडली हो सकता है। तो वी आर ऑलरेडी सीइंग कि पाकिस्तान में पिछले 10-12 साल में 2 बार फ्लड्स आ चुके हैं, अर्थक्वेक्स भी आ चुके हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू डू। अब असल जो मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इज़ कि जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही नैरो माइंडेड है। दे डोंट हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। वो ऐसा जीते हैं जैसा कि इंडिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट इज लाइक सेइंग कि आप एक अपने पड़ोसियों ऐसा जीते हैं कि आपको अपनी पड़ोसी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज अजम्पशन, स्पेशली ए मुल्क जो हमेशा से डिपेंडेंट रहा है ऑन अदर्स। मतलब जैसे इंडिया में आत्मनिर्भर ताकि एक इट इज ए गोल बाय इटसेल्फ ना। आप ये कभी इस तरह की बातें नहीं सुनते पाकिस्तानी लीडर्स से अबाउट बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स। बस वो यही ढूंढते रहते कि अगर इनसे मैं फ्री हो जाऊं तो फिर किसी और को ढूंढ लिया। मैं मजाक से कहता हूं कि इस्लामिक शरिया में एक लफ्ज है कॉल्ड महरम कहते हैं, वेयर वुमेन कांट गो आउट विदाउट an attendant male, बेटा, भाई या फादर। तो पाकिस्तान भी दुनिया में बगैर महरम के नहीं निकलती। कभी अमेरिका उसका महरम होता है या तो कभी चाइना उसका महरम होता है। तो वो बगैर महरम के मतलब बुरखे में बैठ के निकल जा सकते थे, बट they want somebody adult to be with them in the international arena। तो अगर उनकी लीडरशिप, मैं आपको ये बात कह सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस से कि अगर उनकी लीडरशिप एक कदम उठाती है इंडिया के तरफ, इंडिया विल टेक 2 स्टेप्स। आपको पता है कि जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, सो ही विजिटेड पाकिस्तान। 2015 में वो वहां पे गए थे। अगर मिसाल के तौर पे अगर जैसा इंडिया ने नेपाल को, बांग्लादेश को, सेनेगाल, मॉरिशस को दावत दी कि आप आए G20 के फाइनेंस मिनिस्टर, अगर वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को बुला लेते तो आई गारंटी यू वो फ्लड्स का मसला छोड़ देते, फाइनेंस सारी की सारी G20 में अगर वो आ जाते ना तो उनको कितना चांस मिल जाता टू मेक देयर केस टू G7 के हमारे तरफ फाइनेंशियल जो मसाइल हो रहे हैं उसको हल कर। वो सब छोड़ के वो कश्मीर का मुद्दा लेके शुरू हो जाते टॉपिक से हटकर। तो उससे मुझे लगता है कि इंडिया बेजार हो गया है लिटरली। तो जब भी वो कश्मीर का मुद्दा, दूसरी चीज ये है कि देयर इज अ जेन्युइन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हो रहा था ना काफी सीरियसली। वी हैव सीन दिस, मतलब इंडिया के पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ। सो द इंडियन गवर्नमेंट मुझे लगता है कि वाज फ्रस्ट्रेटेड कि जब वेस्ट पे टेररिज्म होता है तो वेस्टर्न कंट्रीज कितनी अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने खुद इराक को और अफगानिस्तान को तकरीबन 20 साल तक ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इंडिया फील्स के जब इंडिया बिकम्स अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, द वर्ल्ड इज नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन, और इंडिया को उतना सिंपैथी या सपोर्ट नहीं मिल रही दुनिया से जितना वेस्ट डिमांड करती है व्हेन इट बिकम्स द टारगेट ऑफ टेररिज्म। सो इंडिया में ये मतलब फॉरेन पॉलिसी में ये दिस बिकेम अ बिग एजेंडा टू टेल द वर्ल्ड दिस स्टोरी के देखो हम वी आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, आवर नेबर, जो इतना ज्यादा टेररिज्म करता है। एंड जैसा जैसा इंडिया की इंटरनेशनल स्टैचर बढ़ते गया, क्लाउड बढ़ते गया, कैपेबिलिटीज बढ़ते गई, देन इंडिया हैज स्टार्टेड बेसिकली मूविंग अवे, पाकिस्तान को कोने में ढकेलना शुरू कर दिया उसकी सिग्निफिकेंस। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि यू कैन सी के जो पाकिस्तान के ट्रेडिशनल नेचुरल एलाइज है मुस्लिम कंट्रीज जैसा सऊदी अरेबिया को ले लें आप, खासतौर से सऊदी अरेबिया की इतनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी कि जब